A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a very important chapter, that is the financial statement of sole proprietorship. After discussing our first chapter of part B, that is a financial statement of sole proprietorship, let's we discuss about the very important chapter, that is a financial statement of sole proprietorship with adjustment. You can see that in the last few videos we discussed financial statement of sole proprietorship, and we can see that how any sole proprietor prepares its trading account, profit and loss account, and the balance sheet. Okay, in this chapter we will also prepare the trading account, profit and loss account, and the balance sheet with a lots of adjustment, because you know very well, जब भी हम एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल द इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी सारी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हमारे पास सुटेबल रूप में अवेलेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद या बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चलती है। उस इंफॉर्मेशन को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में इंक्लूड करने के लिए हमें एडजस्टमेंट्स का हेल्प लेना पड़ता है, दैट इज अ विथ एडजस्टमेंट। सो what is the basic meaning of adjustment? Basically when we prepare the financial statement, you know very well, financial statement बनाने के लिए basic होता है, that is a trial balance. Suppose we will prepare the trial balance with the available information, and after the preparation of the trial balance कुछ information हमारे सामने और आ गई। उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे, दैट विल बी the topic of this chapter, that is a financial statement of sole proprietorship, that is with adjustment. So at last we conclude this chapter, कि इस चैप्टर का थीम क्या है बेसिकली। हम फर्स्टली क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्टली वी प्रिपेयर द जर्नल, पास द जर्नल एंट्रीज, देयर आफ्टर वी प्रिपेयर द लेजर, देयर आफ्टर वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेजर। सपोज लेजर बनाने तक हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो हमें अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ट्रायल बैलेंस को बना लिया, ट्रायल बैलेंस इक्वल भी आ गया, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी हैं जिनको हम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं कर पाए। जब हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या उन सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे? नो। एडजस्टमेंट्स को, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना, इट विल बी नोन एज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of sole proprietor with adjustment. Okay, so in this video firstly we revised what is financial statement of sole proprietorship, इसमें कौन-कौन से statement आते हैं, and thereafter we will discuss about the what is the meaning of adjustment and how it affect the trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay, so let us start today's topic, statement of sole proprietorship. So financial statement are the statements prepared at the end of accounting period which report the profitability and financial position of the business. So please note down in your copy, what is financial statement of sole proprietorship? Basically financial statement means these are the statement, ये के statement होते हैं prepared at the end of the accounting period, जिसे हम कब prepare करते हैं?
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. बेसिकली अकाउंटिंग ईयर पीरियड दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर. Okay, so which are prepared at the end of the accounting period, which report the profitability and financial position of the business. जो रिपोर्ट करते हैं एट द एंड कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एज वेल एज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. इट मींस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर निकल कर आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं. बेसिकली दीज स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. So basically there are basically two types of the statement included in the financial statement. The first one is a statement of PL, and that is statement of profit and loss, a statement of profit and loss and balance sheet. Number second, important points regarding the financial statement, it are prepared at the end of the accounting period. यानी इसे हम कब prepare करते हैं, at the end of accounting period. इसे हम साल के एंड में प्रिपेयर करते हैं. जनरली अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके का होता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके, इट मींस हम जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे, कब बनाएंगे, 31 मार्च, व्हेन वी फॉलो द फाइनेंशियल ईयर. एंड नंबर सेकंड टाइप ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर में कितने तरीके के होते हैं, मतलब पीरियड कितना होता है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. सो इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द कैलेंडर ईयर, so it prepared its financial statement on 31st December. So basically financial statement कोई भी organization, especially for the sole proprietorship, कब prepare करते हैं, at the end of the accounting period. An accounting period can be take one of the following, that is the calendar year and the financial year. Calendar year अगर हम follow करते हैं तो we prepared financial statement on 31st December, और अगर हम accounting year follow करते हैं, that is known as the financial year, तो 31st March को हम अपना बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल को प्रिपेयर करते हैं. ओके, द नंबर थर्ड वन इज द with the help of the financial statement we report the profitability and financial position of the business. यानी कि हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, यानी एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिटेबिलिटी में था एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट. हम ये एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं कि हम कितनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. एंड नंबर सेकंड इज फाइनेंशियल पोजीशन. विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट इट्स कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. यानी बेसिकली अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली सोल प्रोप्राइटरशिप, दो चीजों पे फोकस करता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी और एक फाइनेंशियल पोजीशन. प्रॉफिटेबिलिटी मींस एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. यानी कि हम क्या पता करते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस. एंड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी draw the conclusion about the assets, liabilities and capital of the business. यानी बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर क्या प्रॉफिट है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, मतलब कितने उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, कितनी शॉर्ट टर्म एसेट्स है, कितनी लॉन्ग टर्म एसेट्स है. ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय द गिवन टू द organization with the help of the financial statement. So these are the definition of the financial statement, and these are the three important characteristics of the financial statement. So what is financial statement? Financial statement is a statement which are prepared at the end of the accounting period which shows which report the profitability and financial position of the business. Okay, so with the help of financial statement, if you are talking about the
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट। कितने तरह के स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज अ इनकम स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। याद रखिएगा ये चीज। ओके, सो फाइनेंशियल पार्टनरशिप जो है दो तरह के स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट हम क्या पता करते हैं? फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की सोल पार्टनरशिप की प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट से हम क्या पता चलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के। एक क्या होता है? दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी पता करना, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। तो इट मींस सोल पार्टनरशिप prepared two types of the financial statement: income statement and position statement. In the income statement, sole proprietor prepared two types of the account. The first one is a trading account, and number second is a profit and loss account. So कोई भी sole proprietorship इनकम कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है? उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में कितने अकाउंट प्रिपेयर होते हैं? टू, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड पोजीशन स्टेटमेंट पता करने के लिए सोल्डरशिप क्या प्रिपेयर करता है? दैट इज बैलेंस शीट। ओके, द शीट ऑफ बैलेंसेस। और ये सारी चीजें होती है ना, याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा कब बनता है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जनरल बन जाएगा, लेजर बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, उसके बाद ही हम लोग बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप अपने पास। सो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट हम क्या पता करते हैं? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, या नेट प्रॉफिट से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। सो basically if you summarize all the topics given on in your white screen, in your screen, on your screen, that is, what is financial statement? Statement prepared at the end of the accounting period which report the profitability and financial position of the business. It means financial statement includes the two types of the statement: income statement and position statement. At the end of the accounting period, ये financial statement कब बनेगा? accounting period के end में। accounting period कितने तरीके के हो सकते हैं? दो, financial year and calendar year. When any organization follow the financial year, so it prepares its financial statement on 31st March, and if any organization follow the calendar year, so it prepares its financial statement on 31st December. With the help of the financial statement, organization reports the profitability and financial position of the business. Profitability means ability to earn profit. It means firm net profit earn कर रही है, net loss. And financial position के help से company draws the conclusion about the capital, assets and liabilities. So अगर हम थोड़ा सा और डीप में स्टडी करें, so we can find that there are basically two types of the statement included in the financial statement: income statement and position statement. Income statement reports the profitability of the firm, whereas the position statement reports the financial position of the firm, that is the assets, capital and liabilities. If you are talking about the income statement of the financial of the proprietorship, so it includes the two types of the account: trading account and profit and loss account. Trading accounts reports about the gross profit and gross loss, whereas the profit and loss account reports about the नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अब ये कहोगे सर हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ही चाहिए, तो क्यों हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए? देखिए बेसिकली जब तक हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पता करेंगे, whenever we could not prepare the gross profit and gross loss, तब तक हम net profit and net loss calculate नहीं कर सकते। It means for the calculation of the net profit and net loss, we have a sufficient knowledge about the gross profit or gross loss. It means जनरल के बाद लेजर बनता है ना, लेजर के बाद ट्राई बैलेंस, ट्राई बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी तरह से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैलकुलेट होता है आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। So if you are talking about the positional statement, so positional statement include the one type of the statement, that is a balance sheet. Balance sheet means sheet of the balances.
यानी एक ऐसा शीट, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम अपने ऑल द टाइप्स ऑफ द अकाउंट, यू नो वेरी वेल, मॉडर्न टाइप में कितने तरह के अकाउंट्स थे? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, याद है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। और मॉडर्न के हिसाब से क्या कितने तरह के अकाउंट्स थे? एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ द अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंस के जो अकाउंट्स होते हैं विच आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जितने भी अकाउंट्स बच जाते हैं, द रेस्ट ऑफ द अकाउंट, दैट इज द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कैपिटल के अकाउंट, एसेट्स के अकाउंट एंड लायबिलिटीज के अकाउंट, विच आर all included in the balance sheet of the sole proprietorship. Okay, so you can see that what is financial statement and which types of the account and statement are included in the financial statement of sole proprietorship. And you know very well this chapter will be related to the preparation of the financial statement with adjustment. So firstly, we discussed what is adjustment. So please note down in your copy what is adjustment. Adjustment is additional information given outside the trial balance, known as adjustments. So what is adjustment? कोई भी additional information जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है, that is given outside the trial balance, known as the adjustment. बेसिकली यू नो वेरी वेल, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसका जो बेसिक होता है, जो उसका सपोर्टिव पार्ट होता है, दैट इज द ट्रायल बैलेंस। यानी हम ट्रायल बैलेंस की बेसिस पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस इज आल्सो गिवन एंड द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन आर गिवन, सो सच इंफॉर्मेशन विल बी नोन एज द एडजस्टमेंट। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। While preparing trial balance, please note down, it is a very important chapter for your syllabus. So while preparing final accounts, that is a trading profit and balance sheet, final accounts, the items which are given, the items which are given inside the trial balance, are written only once, either trading account or profit and loss account or बैलेंस शीट। यानी कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के इनसाइड गिवन होते थे, जैसे रेंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, सच आइटम्स विल बी रिटन ओनली वंस, एक बार उन्हें लिखा जाता था। या तो ट्रेडिंग में लिखते थे, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इन द लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी दैट ओपनिंग स्टॉक कहां होता था? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसे हम लोग कहां लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रेंट गिवन होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सेल्स होता था तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव होता तो पीएल के क्रेडिट में। प्लांट एंड मशीनरी, यू नो वेरी वेल, प्लांट एंड मशीनरी कहां लिखते थे? ओनली वन साइड, दैट इज बैलेंस शीट एसेट साइड। Creditor, balance sheet liability side. So while preparing the final account, the items which are given inside the trial balance are written only once, either trading account or profit and loss account or balance sheet. Apart from this, the items
the items which are the items which are given outside the trial balance, which are given outside the trial balance, यानी वो आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस के कहाँ होते थे, बाहर. द आइटम्स विच आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस are to be written are to be written to be written twice because it is known as adjustment. ये बहुत ही ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा. जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होते थे उनको हम कम से कम 2 बार लिखते थे. जैसे अगर आपने लास्ट चैप्टर देखा होगा तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक विल बी राइट डाउन फर्स्टली इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड इज द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. यू कैन सी दैट. तो क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखा होता था? एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ. कहां? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस के बाहर. कभी भी आपने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं देखा होगा. अगर होगा तो वो एडजस्टमेंट नहीं होगा, बिकॉज कोई भी ऐसा आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, उसे एक जगह पोस्ट करेंगे. और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, सो सिचुएशन में यू हैव टू प्रिपेयर सच थिंग्स and taken as an adjustment and write down the 2 places. For example, closing stock. और ऐसा क्यों होता है? Because of double entry system. You know very well. Double entry system में क्या होता है? According to the double entry system, हर items का कितनी जगह इफेक्ट पड़ता है? 2 places. Minimum 2 places की जगह इफेक्ट पड़ता है. So the items which are given outside the trial balance are to be written twice because it is known as adjustment and it is all about the double entry system. For example, closing stock. अगर हम example की बात करें, so we take the very famous example that is a closing stock. Closing stock, most of the cases में closing stock को adjustment की तरह ही treat किया जाता है. And firstly, it will be right on in the credit side of trading account. And second effect is assets side of balance sheet. Okay, I hope it is clear. And the very important part of this topic, that is in adjustment को adjust करने के लिए, for the adjustment of such kind of the adjustment, we pass the journal entry. So journal entries are passed to the effect, यहां हम लिख दे रहे हैं journal entries are passed to effect. जो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं टू effect द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, यानी उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट शो करने के लिए, टू रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, दीज एंट्रीज इस एंट्रीज को क्या बोला जाता है? आर known as adjustment entries. Which kind of entries? Adjusting entries. So I hope it is clear. थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. Firstly, in this video we discuss what is a financial statement of sole proprietorship, which kind of the statement and account are included in the financial statement of the sole proprietorship. They are basically 2 statements, income statement and positional statement. In the income statement we prepare the trading account, profit and loss account. ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से नेट प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं. इज दैट क्लियर? और उसके बाद अगर हम लोग बात करें द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पोजिशनल स्टेटमेंट. पोजिशनल स्टेटमेंट में वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट. विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट वी फाइंड आउट द कैपिटल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. और उसके बाद यू कैन सी दैट वी डिस्कस द financial statement of sole proprietorship with adjustment. So what is adjustment?
The adjustment means additional information given outside the trial balance known as adjustment. कोई भी information जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स कहते हैं. पॉइंट नंबर 2, while preparing the final account the items which are given inside the trial balance, जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उसे हम एक ही जगह लिखते हैं, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में. क्लियर. लेकिन जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होते हैं उसे हम कम से कम दो जगह लिखते हैं, बिकॉज ऑफ इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स कहते हैं, और ये टोटली बेस्ड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम्स पे. बेसिकली एडजस्टमेंट को हम इसलिए इनक्लोज करते हैं क्योंकि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सो इस सिचुएशन में हम जो छूटी हुई इंफॉर्मेशन है उनको इंक्लूड करने के लिए एडजस्टमेंट्स का हेल्प लेते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. तो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह इफेक्ट शो करते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में. इज दैट क्लियर. एंड एडजस्टमेंट को सिर्फ हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड ही नहीं करते बल्कि इनसे रिलेटेड कुछ एंट्रीज भी पास होती हैं. व्हाट इज द एंट्रीज? द जर्नल एंट्रीज आर पास टू इफेक्ट द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट. These entries are known as adjusting entries. So what is adjusting entries? What is adjustment entries? Adjustment entries मतलब adjustment को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड करने के लिए वी पास अ जर्नल एंट्री लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. यू नो वेरी वेल क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड दो जगह इफेक्ट देखते हैं फाइनल अकाउंट में, उसकी जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं. द जनरल एंट्री विल बी अ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. अभी हम लोग उसको और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज अ जनरल एंट्री, दिस इज नोन एज द एडजस्टिंग एंट्रीज एंड दीज आर द इफेक्ट. कितना इफेक्ट पड़ा? ट्वाइस इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक. So you can see that what is the meaning of adjustment and what are the effect of the adjustment in the final account of the sole proprietorship, as well as we can see that what is the meaning of adjusting entries. Let's we move to the very important topic of this chapter, that is the important adjustment. What is the meaning of important adjustment? Please note down. कौन कौन से स्टेट एडजस्टमेंट हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, इसको पहले हम एक समरी बना लेते हैं एंड देयर आफ्टर वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट सच काइंड ऑफ द एडजस्टमेंट. ओके, सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी अ क्लोजिंग स्टॉक. मैं पूरा नाम लिखवा दे रहा हूं पहले, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आपके कोर्सेज में हैं और क्लोजिंग स्टॉक्स को कैसे एडजस्ट करना है, सब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, सब हम स्टार्ट करेंगे. ओके, the second is outstanding expenses. Third one is a prepaid expenses. एडजस्टमेंट मीन्स ये सारी इंफॉर्मेशन अगर बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी, सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी, तो उसको हम कैसे एंट्री पास करके इफेक्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे फाइनल अकाउंट में, और इनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, depreciation. Okay, so please note down in your copy properly कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें पढ़ने हैं. नेक्स्ट, after the depreciation, the very important is interest on capital, interest on loan, interest on capital, interest on loan. Number 9 is interest on capital and interest on loan के बाद thereafter we discuss about the provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. Number
10 is provision for discount on debtor। इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम 9 में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की जगह इसमें कई सारी चीजें जैसे बैड डेब्ट्स, क्योंकि ये सब चीजें एक ही से रिलेटेड होती हैं। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, सब चीजें इंक्लूड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तीन चीजें। नंबर 10, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, और इस पे कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ मैनेजर्स कमीशन, एबनॉर्मल लॉस, मैनेजर्स कमीशन, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के बाद वी डिस्कस्ड द चैरिटी सैंपल, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, यू नो वेरी वेल। चैरिटी सैंपल, यू नो, चैरिटी में हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, उसमें सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, उन सबका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर कोई है, किसी आइटम पे जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो उसको कैसे हम फाइनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। इट इज अ जीएसटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये नया टॉपिक है। हाँ, उसके बाद आपको डिस्कस करना है दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स on approval basis, as well as 15 will be a amortization, depreciation and amortization, that is a written off of intangible assets। depreciation चैप्टर में पढ़ा है, depreciation को भी हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करते हैं। उसी तरह से amortization है, लाइक पेटेंट, गुडविल एंड ट्रेडमार्क को अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो उसका कैसे हम बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट में हम कैसे उनको इंक्लूड करते हैं, कैसे शो करते हैं। ओके, और कोई कोई भी बच गया हो, कोई भी एडिशनल, सो इतनी चीजें हमें पढ़नी है बेसिकली। दे आर बेसिकली 15 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विच विल बी आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट। सो वन बाय वन हम इन सारे एडजस्टमेंट पे डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, उसको हम कैसे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और कैसे उसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में इनके इफेक्ट को शो करते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन। सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द टॉपिक्स वेरी इजली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।